براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کے روح کی رہنمائی میں اس کی شفقت اور محبت بھری باتوں پر غور کر سکیں اور سیکھیں کہ خدا تعالیٰ جس کا پیغام ہمیں انبیاء کے وسیلہ سے پہنچا اور اس کی ذات کا مکاشفہ جب ہم پر کھولا گیا تو انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر پرانے عہد نامہ میں جب خدا کے منصوبے کو انسانوں پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا کا منصوبہ بھلائی کا ہے، برائی کا نہیں، تاکہ ہم انسانوں کو بہتر انجام کی امید بخشے۔ خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے بھلائی کا ہے، برائی کا ہرگز نہیں، تاکہ ہم انسانوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اس کی شفقت، اس کی محبت کے وسیلہ سے ہے۔ اور انبیاء نے اس بات کو بہت واضح کر کے ہم تک پہنچایا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں جو میرے مسلمان بہن بھائی، مسیحی اور پوری دنیا کے مختلف مذاہب مکتبہ فکر کے لوگ پروگرام فضل ربی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی ہے، بعد میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اسی بھلائی کی بات کو خدا کا بندہ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے اور چوتھے باب میں وہ بیان کرتا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ آپ شریعتوں کی بات کرتے ہیں، آپ احکام کی بات کرتے ہیں، آپ نے اصغر گناہ اور چھوٹے بڑے گناہ اصغر اکبر میں بانٹ رکھا ہے، تفریق کر رکھی ہے، گناہوں کی لسٹیں ہیں، اور عدالتوں اور فتووں کی فضاؤں میں ہم رہنے والے لوگ ہیں، لیکن آواز حق، صدائے رب الافواج، صدائے روح القدس آج حکومتی ایوانوں سے لے کر دنیا کے گلی کوچوں اور بازاروں تک یہ آواز حق، یہ صدائے آسمان ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اس کا شعور جاگتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش نمو پا چکی ہے کہ وہ خدا کی پیروی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے واضح طور پر، پس جو کوئی یہ جانتا ہے، شعور رکھتا ہے کہ بھلائی کیا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میری تخلیق کا مقصد ہے، میری طرف آسمان کی نگاہ ہے۔ میں بشپ ہوں، میں مولوی ہوں، میں پنڈت ہوں، میں عام انسان ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں وکیل ہوں، میں پادری ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں جو کوئی بھی کیوں نہیں ہوں، میں مندر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، اگر یہ پیغام خدا پہنچا ہے ہم تک، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، فیصلہ اس کا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا، چونکہ شاید اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن احکام خداوندی ہے، اجر تو آسمان دے گا، چونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن ہم جن سمتوں کے مسافر ہیں، ان راہوں پر بھلائی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے یا اس پر سوالیہ نشان ہے؟ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے یاد رکھیں
रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने बहुत वाज़ेह तस्वीर पेश की थी। उसने कहा दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि खुदाई अक्ल नई हो जाने से, अक्ल मिल जाने से अपनी शक्ल, अपने तरीकाकार, अपना रहन सहन, अपनी सोचें, अपने अमाल बदलते चले जाओ। और वो अमाल, उनकी पहचान क्या है? भलाई। वो जिस खुदा की पैरवी का दावा है, लिखा है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर यकसा तौर पर पहुंचाता है। सूरज की रोशनी सबके लिए, हवा सबके लिए, जमीन और उसकी पैदावार सबके लिए, जो भलाई करना जानता है, लेकिन रोक रखा है अपने आप को। खुदा के कलाम की रोशनी में लिखा है वो गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी करता है। दुनिया में मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन क्या मसाइल मसाइल ही रहेंगे, या मसाइल दर मसाइल पैदा होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे? खुदा ने अक्ल दानिश जब अता फरमाई है, उसने अपनी कुतुब अता फरमाई है, तो जरूर है उस तरफ तवज्जो दी जाए, निगाह की जाए और देखा जाए ये जो मसाइल हैं इनकी जड़ें कहां पर हैं, किस कोख से ये जन्म लेते हैं, कौन है जो इनको परवान चढ़ाते हैं, कौन है जो इनकी निगाहदाश्त करते हैं, कौन है जो इनकी मुहाफजत करते हैं, जड़ें कहां हैं, फिर उन मसाइल का हल तदारिक किस तरह से किया जाए, तरीकाकार क्या होगा, कैसे किया जाए, तरीकाकार क्या होगा, और फिर उस तरीकाकार का तजजिया किया जाए कि जो फवाइद, जो नताइज हम देखना चाहते हैं वो हमें मिल भी रहे हैं या नहीं। हमारा मौजू ये था और आज यही रहेगा जो पिछले हफ्ते जहरीली शराब पीने से जो हलाकतें पाकिस्तान में मसीही, मुस्लिम और दीगर लोग भी जो जहरीली शराब पीने से हलाक हुए, इस मौजू पर बात कर रहे हैं। और दूसरा जो असाइलम सीकर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और थाईलैंड में कुछ क्रिसमस के दिन गिरफ्तारियां हुई थी, उस पर बात कर रहे हैं ताकि हम सीखें कमी कहां है, हल क्या है, किस तरह से हम इन तमाम मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात जो पैदा हो रही हैं। और यहां पर मैं ये भी बात बता दूं बड़ी हलीमी के साथ, मसाइल तो हैं, अब मसाइल की निशानदही करना ये किसी की बेइज्जती करना नहीं है, किसी के वकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। हर ग्रोह में, हर मजहब में, हर अदारे में, हर मुल्क में, हर जगह पर बहुत से अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ काली भेड़ें भी होती हैं। अब बजाय इसके कि काली भेड़ों की निशानदही करने वालों को ही उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए, उनको खत्म करने की कोशिश की जाए, ये दानिशमंदी नहीं होती, बल्कि सुधारना, इस्लाह करना, दुरुस्तगी करना, ये असल रूह होती है। और ये प्रोग्राम भी मैं इसी जज्बे के साथ, नतीजा पाने की उम्मीद और आस पर कि अगर बाइख्तियार लोग हैं, रियासत है, तो रियासत जहां कमजोर है वहां मजबूती आए। और अगर कोई अदारा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज का, खुदा ने उसे जिम्मेदारी दी है, तो जो कमजोर पहलू हैं उनको वो मजबूत करें। और अगर जो अदारे के लोग अच्छा काम करते हैं, रियासत भी उन्हें अजाजात से नवाजती है
और सिविल सोसाइटी भी उन्हें दादे तहसीन देती है। मकसद ये है जहां कमियां हैं वो पैरिशेस में हैं, रियासत में हैं, घरों में हैं, उन कमियों पर निगाह की जाए और उन हिस्सों को मजबूत किया जाए। यह मकसद है इस शो का। किसी की दिल आजारी नहीं, किसी रियासत, किसी मुल्क, किसी मजहब, किसी फिरके की दिल आजारी इसका मकसद नहीं है। मकसद यह है भलाई पैदा हो रियासतों, मुल्कों, मज़ाहब के लोगों के लिए भी जो खुदा चाहता है। तो इस मौजू को मेरे साथ दो मेहमान थे, हम मिलकर बात कर रहे थे। तो ये बातें जो वकूअ पज़ीर होती हैं, इनके लिए कलाम क्या कहता है, इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। ये बातें ग्रंथियों के खत में, ये बातें हमारे वास्ते, जो बातें वकूअ पज़ीर हुई हैं, असबाक हैं इनमें, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरें ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसी उन्होंने की। तो जो लोग नुकसान उठाने वाले, जो लोग लुकमा अजल हो गए और जो लोग जिम्मेदार हैं, उन सब के लिए सीखने की बातें हैं। तो मैं अपने पहले मेहमान को फिर मुतारफ करवाना चाहता हूं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अपने महदूद वसाइल और दोस्तों के साथ मिलकर भलाई का काम करते रहते हैं। जनाब मोहतरम भाई तारिक साहब। तारिक भाई कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब जी, क्या हाल आपका? ठीक है जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है और शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम बात कर रहे थे जहरीली शराब से जो लोग वफात पा गए, और ये ऐसा मसला है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। हमारे मुसलमान बहन भाई हों या मसीही हों या दीगर मज़ाहब के हों, जहरीली शराब ने बहुत से ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए। आपसे बात हो रही थी जिम्मेदार कौन है। आपने दो पहलुओं पर बात की कि रियासत है और मुआशरा है, और इस पर आपने सिर हासिल गुफ्तगू फरमाई। तो दीगर जो जिम्मेदारान आप समझते हैं, दो बातें और आपने फरमाई थी कि वालिदैन भी, उनका भी हिस्सा है, और इसके साथ साथ जो रहनुमा हैं उनका भी हिस्सा है, जो मजहबी हों या सोशल रहनुमा हों। तो इस पर आप बताइए कि ये कैसे जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि पिछली दफ़ा हमने इसी टॉपिक पे जब बात की मुआशरे रियासत के बारे में जिक्र किया, लेकिन आज दो लोग जो जिम्मेदारान हैं, वालिदैन और उसके अलावा जो हमारे मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा हैं। खासतौर पर वालिदैन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वालिदैन हैं जहाँ भी रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को तरबियत देने में कहीं ना कहीं कमी है उनके पास। जब वो उनको तरबियत नहीं देते, बहुत दफ़ा मैंने पाकिस्तान में देखा है कि वालिदैन अक्सर व बेशतर अपने बच्चों को जब वो बुरी बातें कर रहे थे, अगर वो शराब नोशी कर रहे हैं, अगर वो कोई भी बुरा काम कर रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं, तो वो इसका चाचा भी ऐसे करता था, इसका डैडी भी ऐसे करता था। बनिस्बत हम वालिदैन, उसकी माँ को या उसके बाप को ये देखने की जरूरत है कि इस बच्चे को हमने तरबियत करना है इस कलाम की रोशनी में। अब कलाम हमें ये कहता है कि अपने बच्चे को छड़ी से दरेग ना कर, छड़ी से ताकि उसकी तादीब कर, उसकी तरबियत कर, इस कलाम के दायरे में रहकर। छड़ी का मतलब ये है, ये कलाम खुदा का। जब आप इस कलाम को सामने रख के बच्चों को सिखाते हैं कि ये अच्छी राह है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस तरह से चलने के लिए कहा है, तो हमारे बच्चे कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। और जब बहुत शुक्रिया, आपने वालिदैन की बात की है तारिक साहब, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है। जी और फिर पालूस रसूल लिखते हैं कि जो काम तू खुद करता है दूसरों को कैसे मना कर सकता है। सो अगर वालिदैन खुद नशा करते हैं तो वो बुरा नमूना देते हैं। बहुत शुक्रिया। वालिदैन के लिए पैगाम है, खुदा के कलाम के मुताबिक खुद भी चलें और बच्चों को तरबियत दें, तो वो भी आपसे सीख कर नशे और दीगर बुराइयों से जिनको वो अपना सकते हैं, इसका तदारक हो सकता है। दूसरा नुक्ता आपने उठाया था कि रहनुमा जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं, वो किस तरह से हैं?
ڈاکٹر صاحب وہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پچھلے شو میں بھی وہ کسی بھائی نے کال پر لیا تھا اور بات یہ کہی تھی کہ ہائی کورٹ اور مائٹ بی سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ کرسچنز اور ہندو جو ہیں جو منورٹیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پرمٹ ہو، تو کیوں پھر کچھ ایسے لوگ جو آج بھی اس پرمٹ کی جو لعنت ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دیسی شراب یا جیسی بھی ہے یہ صرف کرسچنز نہیں کرتے، مسلم بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، ہندو ہیں، سب لوگ ہیں. اب ان کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مذہبی رہنما، جیسے آپ کو پتہ ہے جیسے سوری ٹو سے ہمارے کیتھولک جو فادر صاحبان ہیں وہ لیٹر دیتے ہیں، اس کے بعد کیا وہ ان کو اس کی روک تھام نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے کام کو بند کیا جائے؟ جب اس کو بند کیا جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر انوالومنٹ کم ہو جائے گی، اور جتنے بھی لوگ خاص طور پر سیاسی، جب میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا معاشرے میں جو لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں جن کی آمدن ان سے منسلک ہے، اگر وہ اس کو روکیں گے تو بہت اہم ہوگا. اور خاص طور پر ہمارے جو لوگ ہیں مذہبی رہنما ہیں ان کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ جو ڈینومینیشنز لیٹرز دیتی ہیں آپ نے، اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اب طارق صاحب نے یہ حقیقت بیان کی ہے، یہ ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی ڈینومینیشن ایسا کرتی ہے تو ان کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ کلام کے مطابق یہ کر رہے ہیں یا کچھ اور مفادات اس سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ان دونوں نکات پر روشنی ڈالی. میرے ساتھ ایک دوسرے مہمان بھی ہیں. ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، درد دل رکھتے ہیں، جناب محترم پیٹر بھائی صاحب. پیٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ پاسٹر جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے خدا کا. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی خداوند کا بہت شکر ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، بہت شکریہ. طارق صاحب نے فرمایا کہ دو اور بھی ذمہ داران ہیں جن میں والدین ہیں اور رہنما ہیں، جو لوکل رہنما ہیں. آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ کچھ اور کسی پہلو سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھے دو پہلو اجاگر کیے اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں بھی کمی ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ جب بھی کہیں پارٹیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، بینکٹ ہال میں ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس چیز کو بڑا اجاگر کیا جاتا ہے اور بڑا ایک شان سمجھی جاتی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو وہاں بھی کنڈیم نہیں کریں گے تو وہ چیزیں ایگزسٹ ہوں گی اور اس سے لوگ انکرج ہوں گے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ایز اے سوسائٹی جو ہے ان چیزوں کو بھی روکیں. ہماری بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، ہماری برتھ ڈیز ہوتی ہیں، ہماری ویڈنگ اینیورسریز ہوتی ہیں، اور گھروں کے جو بھی خوشیاں ہیں، اگر ہم ان میں بھی اس چیز کو اوائڈ کریں تو ایک اچھا لیسن آنے والے مہمانوں کو ملے گا اور اس سے لوگ جو ہیں انکرج نہیں ہوں گے بلکہ ڈسکرج ہوں گے اور ایک بیٹر معاشرہ قائم کر سکیں گے، اور اس چیز کو جو ہے وہ کم سے کم کرنے میں مدد ملے گی. بہت زبردست بات آپ نے کی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرے گا کون؟ انہوں نے کہا معاشرے میں، اور خاص طور پر جو بات کر رہے ہیں مسیحی تقریبات کی، وہ سالگرہ ہو، شادی ہو. پیٹر صاحب کرے گا کون اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نہ کسی کو پاسٹر جی گلے میں رسی تو باندھنی پڑے گی نا. کوئی نہ کوئی کہیں سے شروع کرنا چاہے گا. اگر مذہبی رہنمائی ان کو عام اس کو شروع کریں اور ان پارٹیوں میں جانے سے بریک کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہوگا کہ بھئی ہم اب میں نے جو دیکھا ہے ناٹ بی کنڈیمنگ اینی باڈی، ناٹ بی ڈسکرجنگ اینی باڈی. ہمارے پادری صاحبان بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں یہ پارٹیاں چل رہی ہوتی، وہ نہیں پیتے لیکن وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا. ہمارے جو سیاسی اور دوسرے لیڈر ہیں وہ بھی ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ انجوائے کر ہوتے ہیں. اگر وہ سوچیں کہ بھی یہاں پہ اگر آپ شراب نوشی کریں گے تو آپ پلیز ہمیں دعوت نہ دیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے. کوئی نہ کوئی اپنا پرنسپل دکھائیں، خواہ اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے، تو پھر وہاں سے وہ سٹارٹ ہوگا. اگر ہم جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ
लीडरशिप रोल में हैं, चर्च लीडर में हैं या कम्युनिटी लीडरशिप में हैं, उनको ही इस चीज़ में पहल करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि अगर हमने पास्टर साहब को बुलाना है और अगर हमने किसी और मजहबी लीडर को बुलाना है तो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें 40% 50% कंट्रोल होगा। तो आप का ख्याल है कि जो भी लोग अपनी मुख्तलिफ तकरीबात में शराब को शामिल करें, उसमें शामिल होने से लोगों को चाहिए कि इनकार कर दें, तो आप ये कह रहे हैं? हाँ, ग्रेस करें। बहुत शुक्रिया पीटर साहब। हमारे साथ थाईलैंड से जो हमारा दूसरा मौजू था कि जो असाइलम सीकर्स हैं उनके मसाइल, तो हमारे साथ थाईलैंड से कुछ फैमिलीज मौजूद हैं। इनके साथ कोई हमारी बात नहीं होती सिर्फ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑन एयर, बहुत से प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें बातें सिखाई जाती हैं और लोग सीखी सिखाई बातें भी करते हैं, जैसे कि बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं, कुछ लिखवाई जाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो दिल से किए जाते हैं, कुछ करवाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सी तंजीमें जो काम करती हैं वो उनका पैशन नहीं होता, जो पैसे देते हैं वो उनसे करवाते हैं। और इस दुनिया में हम रहते हैं, जो हो रहा है, कभी इस पर भी खुदावंद ने मौका दिया तो इस पर खुलकर बात करेंगे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं, इनके साथ कोई बात नहीं हुई। अभी आप सुनेंगे क्या मसाइल हैं, क्या हालात हैं। जो सच है वही पहुंचे तो बात बनती है। जो अमारतें झूठ की बुनियाद पर, साजिशों की बुनियाद पर उठाई जाती हैं, उन्हें कोई ना भी गिराए तो वो गिर ही जाती हैं। आइए सुनते हैं दिल की आवाज किन हालतों से गुजर रहे हैं पाकिस्तानी मसीही असाइलम सीकर्स। और इसके साथ मैं ये भी शामिल कर दूं, बहुत से हमारे सुन्नी, अहमदी, शिया और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले असाइलम सीकर्स भी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं। तो हम आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नाम बताना चाहें ज़रूर बताएं, नहीं बताना चाहते ना बताइए। आप बताइए आपकी कैसी सूरत हाल है इस वक्त जहां आप रह रहे हैं? हाँ जी भाई, मसीह में आप सबको सलाम। जी सलाम। मेरा नाम रानी है। मैं थाईलैंड में 4 साल हो गया। मैं 4 साल से हम लोग रह गए। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा, एक मेरा हस्बैंड, हम 5 लोग हैं फैमिली के। जी बिल्कुल। आपके साथ बहन रानी सुनिए, आपके साथ बात हुई थी। आप सिर्फ ये बताइए, चूंकि ये बातें आपने पहले बताई, लोग सुन चुके हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है आपकी, ये बताइए। खाने के ताल्लुक से, आपके वहां पर रहने के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर, और उसके बाद जो दीगर फैमिलीज हैं उनसे भी सुनना चाहेंगे। ठीक है भाई, मैं बताना चाहती हूँ कि इस महीने हमारे पास किराया नहीं था और हम लोग बहुत मुश्किल में थे। मैं परसों गई थी गुरुद्वारे और उन्होंने इतनी बातें कर करके मुझे 100 रुपया दिया। बस मैं इतनी परेशान हूँ। चर्चों में जाते हैं, वहाँ भी हम लोग मांगने वाले बने हुए। इधर पाकिस्तान में हम खाते पीते थे भाई। हाँ, हमारी आवाज जो भी सुने, हम लोगों पे रहम करे। बहुत शुक्रिया। हम लोग बड़े परेशान है। मेरी बच्चियां नहीं स्कूल जाती, 4 साल हो गए ना बच्चे पढ़ रहे हैं। और आईडिस में मेरा हस्बैंड बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। और हमारे पास सम टाइम कुछ खाने के लिए तो कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांग के हम गुजारा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया बहन रानी। सारी दुनिया के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं। शायद कहीं कोई दर्द दिल रखने वाला शख्स, कोई डिनोमिनेशन, कोई भी अदारा इस आवाज़ को सुने। तो बहन, आपके साथ और भी फैमिलीज के लोग हैं, अगर हमारी बात आप करवाना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं करवाती भाई, करवाती हूँ। जी जरूर। सब बड़े परेशान है, ये बात करे। हेलो जी, हम आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। चाहते हैं कि आप अगर नाम बताना चाहें ज़रूर बताएं, नहीं बताना चाहते ना बताएं। ये बताइए आपकी सूरत हाल कैसी है, खाने का आपका इंतज़ाम, रहने के लिए कैसी सूरत हाल है आपके ख़ानदान की, क्या मसाइल फेस कर रहे हैं, किन मुसीबतों का, मसाइल का सामना है? भाई मैं 2014 से यहाँ पे हूँ थाईलैंड में।
जी। और मेरा बेटा जो है 2015 का पकड़ा हुआ है, 16 साल का था, अब वो 17 साल का हो गया, आईडीसी में है। जी। उसकी पढ़ने की उम्र है, आईडीसी में रहने की उम्र नहीं है। बिल्कुल ये तो दुरुस्त आपको बात भी कर पता रहे होगा हैं। बच्चे। हाँ जी, देखें उसकी तो देखें जी, बचपना उम्र तो सारी आईडीसी में गुजर गई है, तब पढ़ने का क्या शौक रहेगा? एक बच्चा जिसने कत्ल नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो फिर वो आईडीसी में कैसे जेल काट सकता है? वो भी 15 साल का हो, 16 साल का। तो आपके जो दीगर अब तो वो खानदान के जवान लोग हो। हैं उनके बारे में बताइए। भाई मेरे 4 बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। मेरा हस्बैंड भी 2016 से पकड़ा हुआ है। बेटा भी जेल में है 1 साल हो और गया। शौहर भी और है। हस्बैंड भी ये। हाँ जी। और मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कभी मेरे पास रूम रेंट भी नहीं होता, और हमारे जो ओनर है हमारी लाइट कट कर देते हैं। बच्चों की ख्वाहिशें तो खत्म हो गई हैं हमारी जिंदगी में। ये अब बताइए, हम क्या कर सकते हैं? कोई आपकी मदद के लिए कोई अदारा, कुछ लोग आते हैं कभी कभी, या सिर्फ आप जाते हैं और फिर आपको कहीं से कोई मदद मिल जाती है? कोई मदद करने आता है आपके इधर? नहीं भाई, मैं देखें जी, इंसान से इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन खुदा सबको देखता है और मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे कहीं से भी नहीं हेल्प मिली। एक दफा मुझे 2000 बाद दिया था JRS वालों ने, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला भाई। छोटा बच्चा मेरा 7 साल का है, बेटी मेरी 14 साल की है, एक मेरा बेटा 13 साल का है। धक्के ही हैं यहाँ पे। अब हम चर्चों से हेल्प लेते हैं, कुछ देते हैं, कभी नहीं देते। लेकिन आपके पास कोई नहीं आता हमें मदद करने? बातें सुननी पड़ती हैं। नहीं, हमारे पास कोई नहीं आता, खुदा के सिवा कोई नहीं मदद कर सकता। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, आपके सामने तो ये फैमिलीज हमारे साथ हैं। बहन बहुत शुक्रिया। अगर और फैमिली भी कोई आपके साथ है तो उनसे भी बात करवाइए। हम चाहेंगे हाँ कि और दुनिया मेरी के रिक्वेस्ट है भाई जी। के खुदा हमारे लिए मसीहा बना के किसी ना किसी को भेजे, और जो दूसरों की मदद करता है उसकी खुदा कलाम में लिखा है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। तो भाई जो किसी की मदद करता है उसके बंद रास्ते खुदावन खुद खोलते हैं। बहन आप ये बताइए, मेरी क्यों यही आप आए थे? क्यों आप आए थे मुल्क छोड़कर? थोड़ा सा बताइएगा, मुख्तसर तौर से बताइए भाई, ताकि दीगर लोग भी हाँ जी, देखे कोई मुश्किल में आता है, खुशी से कोई भी नहीं अपना घर बार, अच्छी जिंदगी, बादशाही छोड़ के आता, अपना मुल्क छोड़ के। हमारी बड़ी अच्छी मेरे हस्बैंड की शॉप थी, इलेक्ट्रिशियन, लाइट और डेकोरेशन की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की शॉप के साथ एक दुकान थी मुस्लिम लोगों की। उन्होंने कहा कि आप शेयरिंग कर लो, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। उसने कहा आपने कैसे ये सब कुछ बनाया है, गाड़ी है, अच्छा घर है, हर चीज है आपके पास, तो अपनी बात शायद कोई भी नहीं छोड़ के आता। भाई हमारा शौक था कि हम थाईलैंड में आके अपने बच्चों की एजुकेशन खराब करें। अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे। कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो। सुन लीजिए वो लोग, यही भाई, मैं ये यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा मैंने ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान भी उठाया है इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाकर, बहुत कुर्बानियां भी मैंने दी हैं ज़ाती तौर पर, लेकिन मैं चुप इसलिए नहीं रहूंगा, चाहे मुझे और भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे और भी मसाइल का सामना करना पड़े, मैं बोलूंगा, इसलिए कि इस किताब में यह लिखा है, जो भलाई करना जानता है अगर वो नहीं करता तो वो गुनाह करता है। बहुत से हैं लोग जिनके साथ मेरी बात होती है और उन्होंने मुखालफतों के महाज मेरे खिलाफ ज़ाती तौर पर भी खोल रखे हैं, और हमारी टीम के खिलाफ भी, इस चैनल के खिलाफ भी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, ना तो मैं किसी के बाप से डरता था, ना डरता हूं और ना डरता हूं। हक बात, सच बात जब भी कही जाएगी, आसमान की सब कुव्वतें उस शख्स के साथ खड़ी होती हैं। और मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो मुखालफतें कर रहे हैं, जो रास्तों में रोड़े अटकाते हैं और जो मदद पहुंचा सकते हैं लेकिन नहीं पहुंचाते, एक दिन हर एक को यहोवा खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। और उस वक्त जो शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, उससे बचने के लिए मैं आज पूरी दुनिया के मसीहों को यह दरख्वास्त हलीमी से कर रहा हूं, बाज आ जाइए,
उन हथकंडों से जब आप मसीहों के नाम पर और कलीसिया पाकिस्तान के नाम पर या कलीसिया एशिया के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, मैं इस तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता। वक्त आईना है, जो भी देख ले वो देख ले, वरना एक दिन मुकर्रर है जब मुझे भी उसकी अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। किसी को शौक नहीं है कि अपने मुल्क को और अपनी अच्छी जिंदगी को छोड़कर बेइज्जती और जलील होने की राहों पर चला जाए। बाकी सब आप पर छोड़ता हूं, खुदा पर छोड़ता हूं। कुछ और फैमिलीज भी हैं, बात करते हैं। बहन बात करवाइए। हाँ जी। और भाई देखिए, हमारा दिल करता कि हम 100 रुपए की खातर इंडियन टेम्पलों में जाएं। बहन आप जो बात कर रही हैं ये दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर कहता हूं और अक्सर मैं कहता हूं, और जो मुखालफीन और हासदीन हैं उनकी नज़र ये शेयर कर रहा हूं। मेरे एक मुसलमान दोस्त का ये शेर है, आपको भी सुनाता हूं। मुसलमानों में बहुत बहुत अच्छे मेरे बहन भाई हैं जिनके साथ मेरे ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मसीहों में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर मज़हब में हैं। ज़ल्ज़लों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, ज़ल्ज़लों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, हासिदों के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। बहन दूसरी फैमिली से बात करवाइए। जी भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। बहुत शुक्रिया बहन, आप हमारे साथ शरीक हुए। हेलो जी बहन, आपको भी बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि जिन हालतों से आप गुजर रहे हैं वो पूरी दुनिया के मसीही, मुसलमान, हिंदू, सिख जितने भी लोग हैं वो सुने, जाने, समझें और फिर खुदा के खौफ और भलाई का इतलाक कहीं ना कहीं हो। कुछ चिराग बाकी हैं जिनकी वजह से रोशनी है, वरना घुप अंधेरा हो जाता। शायद वो चिरागों की भलाई की रोशनी आप तक पहुंचे, यही एक उम्मीद और आस और ईमान है। आप बताइए, आप की हालत कैसी है? खानदान के बारे में। गजल बच्ची बात कर रही हूँ। हाँ जी, मेरे 4 बच्चे और मियाँ बीवी हैं हम, और मैं पाकिस्तान लाहौर से इधर आई हूँ। तो हम 3 साल हो गए हैं, तो हमने तो बहुत परेशानी से ये टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन चर्चों में भी अब तो हमारी बेइज्जती होती है, लोग बेइज्जती करते हैं, हंसते हैं हमारी तरफ जब किसी से मांगते हैं कि हमारे घर खाना नहीं है, कमरे का किराया देना है, प्लीज हमारी हेल्प करें। लोग कहते हैं तुम लोगों का तो अब काम ही हो गया है, तुम लोगों को तो मांगने की आदत ही पड़ गई है। लेकिन हम अपना जमीर मार के मांगते हैं, हम जानते हैं ना, हमें शर्म आती मांगने लगे, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलानी पड़ती इसलिए मांगते हैं भाई, ऐसे नहीं हम मांगते। ये बताइए, आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा? बस भाई कोई दुश्मनी, मेरे बेटे की दुश्मनी थी कुछ लड़कों के साथ, उनकी वजह से वो मेरे बेटे को मारना चाहते थे, उसकी वजह से मैंने अपना मुल्क छोड़ा है। तो इस वक्त जब आप मुल्क छोड़ के आए तो आपको पता नहीं था कि इस किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है, या आपको पता था कि ऐसा सामना हालात का होगा, उसके लिए कुछ तैयारी करके जानी चाहिए? मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। नहीं, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं देना चाहते? वो तो हमें पता था मुश्किलें हैं, लेकिन अपने आपको पता है कि अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हर इंसान का हक है को अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना मुल्क भी छोड़ सकता है, अपना घर भी छोड़ सकता है। अपने बच्चों के लिए मैंने ये सब कुछ किया, अपना मुल्क छोड़ा ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी और जान महफूज रहे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब आपकी सूरत हाल ऐसी है कि जैसे
फ़कीर मांगने के लिए जाते हैं। आपने बताया कि हम ज़मीर को भी मुर्दा कर चुके हैं। आप हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी बात करते हैं। अब मैं जी बात करना चाहता हूं जनाब मोहतरम तारिक साहब, आपने ये बातें सुनी हैं। अब मैं चाहूँगा अपने ज़मीर और दिल और कलाम की रोशनी में बात कीजिए, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातें सुनकर तो बड़ी परेशानी हुई है और नहायत ही गमनाक बातें हैं ये। और कितने दर्द भरी दास्तानें इन बहनों की हैं, इनकी फैमिलीज की हैं। लेकिन जैसे आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि पाकिस्तान से जब ये लोग आते हैं, बहुत दफ़ा पासबानों से और दीगर लोगों से जब बातचीत होती है तो यही है कि लोग जो है जानबूझ के वहां पर गए हैं अच्छे हालात से। लेकिन ये आपके सामने हकीकत बहनों ने बयान की है कि उनके साथ जो जो हुआ वो इसलिए वहां पर आए। और इसके लिए इनकी जो सिचुएशन में, तो मैं तो फिर से अपने जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा हैं, खास तौर पर जिन पर जो कि बड़ी डिनोमिनेशंस जितनी भी हैं, उनके सरबराह भी हैं, उनके साथ हैं, तो प्लीज मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जरूर एटलीस्ट इनकी माली मदद के लिए और दीगर जो कुछ भी इनको वहां पर जरूरत है उसके लिए जरूर तगदो करें। तारिक साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, माफ कीजिएगा मुझे, बात सख्त कर रहा हूँ। सब ये बातें करते हैं, कोई प्रैक्टिकल आप समझते हैं हो सकता है, या सिर्फ बातें ही रहेंगी? जरा गौर कीजिएगा तारिक भाई, बहुत मैं मुश्किल सवाल कर रहा हूं, मुश्किल में आपको डाल रहा हूं, लेकिन आप चूंकि एक जिम्मेदार शख्स हैं। बातें सब ही करते हैं, पुलपट पर हालेलुया के नारे सब लगाएंगे, हीलिंग मीटिंग्स सब करेंगे, वहां पर सारे लवाजमात जो होते हैं होंगे। जो भलाई करना है करना नहीं जानता वो गुनाह करता है। क्या ये इन लोगों की मदद करना भलाई है या नहीं? कलाम खुदा की रोशनी में, कलाम खुदा की रोशनी में इनकी भलाई करनी बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या आप समझते हैं किया जाए? मुझे कुछ लाए अमल बताइए आज। जी मैं एक बाइबल में से कुछ बताना चाहूंगा कि मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आएंगे तो वो ऐसे लोगों का जिक्र है जो कि कौमें उनके सामने जमा होंगी, और जो लोग ऐसे लोगों की मदद नहीं करते जो कि डिजर्व करते हैं। जी तारिक भाई, ये हवाला एंड में मैंने रखा हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप मुझे यहाँ पर बड़ी माफी चाहूंगा, आयात मैं नहीं सुनना चाहता इस वक्त। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ ये मुझे बताइए। आप एक तजर्बाकार लीडर हैं, अगर हो सकता है तो क्या है? मैं बातें सुनकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑन एयर बात कर रहा हूं, और कोई भी मेरे साथ बात करे मैं दलील के साथ, सबूत के साथ बात करता हूं, मैं हवा में नहीं छोड़ता। बातें बहुत हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? सर प्रैक्टिकल जो है ना वो मेरे पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने जो भी अखराजात है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर इस वक्त देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग पूरी दुनिया में जहां जहां बसते हैं, अगर वो यूनाइट होकर इन तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो, अगर कोई सही तौर से हेल्प करना चाहता भी है जैसे कि आप हैं, क्या आपको लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं करते। हमें सबसे पहली बात है यूनाइट होकर इस मसले को अपने दिल से लेना चाहिए कि ये बड़ी मुश्किल में वहां पर हैं। जब वो वहां पर मुश्किल में है, दूसरे ममालिक में जितने भी लोग जो सेटल हैं, अगर हम सब मिलकर, क्योंकि एक शख्स किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। ये दुरुस्त मैं बात अपनी है। बात बताता हूँ, दुरुस्त बात है आपकी बात दुरुस्त है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप बताएं एक शख्स एक तंजीम ये नहीं कर सकती, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पिछले साल जो वहां पे पास्टर हैं, थाई पास्टर हैं, यंग इस तरफ ना जाइए, इस तरफ मैं नहीं चाहता कि आप जाएं।
चूँकि हम किसी की ना तस्दीक करेंगे ना किसी का इनकार करेंगे, जो जो कुछ है वहाँ पर है। लेकिन आपने ये सुना, एक मिनट तारिक साहब 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने इन लोगों के अल्फाज सुने हैं जी जी, और ये मैं सारी एजेंसियां दुनिया की रिकॉर्ड कर लें, इनके साथ कोई प्री प्लान गुफ्तगू नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी भी हूं। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, इसलिए जो आप बात करेंगे वो महदूद है और मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। जो बात आप करने जा रहे हैं मैं इसका रुख इस तरफ लेकर जाना नहीं चाहता, चूंकि फिर बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हूं, मैं कागजों पर लिखी हुई बातों को मानता भी हूं नहीं भी मानता, लेकिन मैं जाती तौर पर बात कर रहा हूं। मैं हकाइक की बात करता हूं, जमीनी हकाइक की बात करता हूं। जमीनी हकाइक होते हैं, उनको नारों से, उनको दुआओं के लबादों से, उनको आयात के लबादों में ढांपने वाले सुन लें, एक दिन सच्चाई खुल जाती है। सो तारिक साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपको बात बतानी थी कि महदूद वसाइल हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ईस्टर पे सिर्फ 10 लोगों के लिए रेंट मुहैया कर सके थे, मैं और मेरे दोस्त मिलकर। तो इस महदूद वसाइल में हम 10 लोगों के लिए सिर्फ 1 महीने का रेंट उनको पहुंचा सके थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं जो ये जिनके पास इतने वसाइल हैं, कि अगर क्यों ना इसको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर उन लोगों की मदद कीजिए। जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म से इस बात को उजागर किया जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है। जितने लोग भी इस वक्त जिंदगी टीवी को सुनेंगे या लाइव सुन रहे हैं, क्या उनके दिल में ये बात आ रही है? अगर आ रही है तो वो राब्ता करें, एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी मदद कर सके, क्योंकि इंडिविजुअली तौर पर थोड़ी मदद जरूर उनके पास पहुंचती है, लेकिन पूरे तौर से हम कवर नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें यूनाइट होकर इस मामले में सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, यूनाइट होना पड़ेगा। पीटर साहब कैसे होंगे, इस पर रोशनी डालिए थोड़ी सी। हो भी सकता है या नहीं, तारिक साहब जो तजवीज दे रहे हैं? ये अर्ज करूं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या चर्चेस काम कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री हूं, कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो काफी नहीं है। हाँ, काफी नहीं है, सब तक नहीं पहुंचता। 3 से 4 हजार क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उनमें से अगर 150 की हेल्प हुई है तो बाकी 3 हजार की नहीं हो रही। तो इसमें सबसे बड़ा जो फर्ज है वो यही है कि हम अपने कौम के लिए, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। अगर हम इन लोगों की हालत नहीं बदलेंगे तो बहुत दुनिया से कहीं और मसीहा नहीं आएगा जो इनकी हालत के लिए मतलब कोशिश करे। वहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल, हमारे खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे अपने लोकल चर्चेज हैं, मैं उनके सामने अपील करता हूँ। अब हमारे कनाडा टोरंटो के अंदर 20 चर्चेज हैं जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के हैं। अगर वो 20 चर्चेज एक फैमिली को भी स्पॉन्सर करें तो 20 फैमिलियां आती हैं, जो कि 500 तकरीबन 100 लोग, 125 लोग बनते हैं। इसी तरह अमेरिका में इतने शहर हैं, कनाडा में बाकी शहर हैं, वेस्ट यूरोप में कितने शहर हैं। अगर हम ये सारे मिलकर तहिया करें कि हमने हर चर्च में एक फैमिली को ही हमने स्पॉन्सर करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई मसीह थाईलैंड में बाकी रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, पीटर भाई ने बहुत प्रैक्टिकल बात की, तारिक भाई ने बहुत प्रैक्टिकल बातें की हैं। आइए कलाम खुदा क्या कहता है इस पर गौर करते हैं। दीनदारी की असल रूह क्या है? आइए कलाम खुदा की तरफ चलते हैं। कोई भी शख्स दीनदार जो समझता है अपने आप को, असल दीनदारी रूह क्या है उसकी? अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, ये लफ्ज़ जुबान को लगाम देना चाहिए जब मुखालफतें करते हैं और तनकीद बराए तनकीद करते हैं, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है, बातिल ख़त्म, मिट जाने वाली है। हमारे खुदा बाइबल का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जिसकी पैरवी के दावा करते हैं सब लोग, और ख़ास तौर पर अहले इस्लाम, मसीही और यहूदी,
खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी जिसमें ऐब ना हो, खालिस खुदा की नजर में, और बेऐब जिसमें कोई ऐब ना पाया जाए, कोई कमी ना हो, यह है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। अब ये जो शराब पीने से अमवात हो गई हैं, घर के सरबराह चले गए हैं, यतीम हैं और बेवाएं हैं, वहां पर रियासत, मुआशरा, हुक्मरान और चर्च, और मैं इसके साथ शामिल कर रहा हूं मसाजिद, चूंकि दीन की बात की गई है, जो खुदा पर ईमान रखने वाले हैं सब लोग। यहां पर लिखा है खालिस दीनदारी ये है कि मुसीबत के वक्त यतीमों और बेवाओं की मदद की जाए। तो जो बेवाएं और यतीम हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो दीनदार है, तो उसकी रूह ये है कि उनकी मदद की जाए। अब कैदियों और दुख उठाने वालों से सलूक के बारे में कलाम खुदा क्या कहता है? बाइबल को प्रीच करना, टीच करना एक बहुत बड़ी अजाज की बात, दीगर मजहबी कुतुब को पढ़ना, तलावतें करना बहुत बड़ी अजाज की बात, लेकिन उनमें जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करना ये उससे भी बड़ी बात है। कैदियों को इस तरह याद रखो गोया तुम उनके साथ कैद हो। मुझे बहुत से लोग कहते हैं तुम्हें बहुत तकलीफ है भाई इन लोगों की। यह है तकलीफ, कलाम खुदा पढ़ लीजिए। कैदियों को इस तरह याद रखो गोया तुम उनके साथ कैद हो। आज मैं मजहब के अलम बरदारों को यह कहना चाहता हूं, जब पौलुस रसूल कलीसिया पर जुल्म ढा रहा था और हुजूरुल मसीह खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, मुर्दों में से जी उठने वाले, कलमाए मुजस्सम, रूह हक, रूह खुदा, दुनिया का निजात दहिंदा, मेरा मालिक, मेरा खुदावंद, मेरा आका, जब पौलुस रसूल को अपनी ज़ियारत फरमाते हैं, पौलुस उनसे पूछते हैं, जब आप यीशु मसीह फरमाते हैं ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल हैरान है और पूछता है ए खुदावंद तू कौन है, मैं तुझे कैसे सताता हूं? अब गौर कीजिए अमाल की किताब में पौलुस किनको सता रहा है? कलीसिया को, जो मसीह का बदन है, और मसीह कलीसिया का दर्द महसूस करते और फरमाते हैं कि तू मुझको सताता है, वो दर्द को महसूस करते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है अगर हम मसीह का बदन हैं जो कि हैं, तो जब एक उज़ू, एक हिस्सा दुख पाता है, दर्द में है, तो बाकी हिस्से उसका दर्द महसूस करते हैं। कैदियों को इस तरह याद रखो गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी यह समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। अगर आपका अपना भाई, अपनी बेटी, अपना अजीज, अपना दोस्त इस हालत में होता तो आप कैसा महसूस करते? मुझे अक्सर सुनना पड़ता है इसको बहुत तकलीफ है। यह है तकलीफ। यीशु मसीह ने कलीसिया की तकलीफ महसूस की। उस कलाम में लिखा अगर एक हिस्सा दुख पाता है, और हिस्सों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत से चर्चेज में यह टीचिंग दी है, कब कोई हिस्सा दर्द महसूस नहीं करता? नंबर एक, बदन के किसी हिस्से को अगर कोड़ हो जाए, कोड़ का मर्स हो जाए, तो वो हिस्सा तो साथ रहता है लेकिन वो दर्द महसूस नहीं करता। और अगर हिस्सा कट जाए तो वो हिस्सा भी दर्द महसूस नहीं करता।
اور کچھ میڈیکل حالتیں ایسی ہوتی ہیں جب گرمی اور سردی محسوس نہیں ہوتی تو جس کا خدا کا نظام، خدا کے کلام میں متوازن ہونا، ایک ہونا نہ ہو، وہ بھی محسوس نہیں کرتا. اور چوتھے وہ ہوتے ہیں جو نظر انداز کر دیتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر بات کو جاری رکھیں گے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں. جی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، جلدی سے بتائیے کون صاحبہ کہاں سے بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں. جی میں شیر خان بات کر رہا ہوں. جی بات کیجئے. تو آپ کا پروگرام دیکھا اور اس کے اندر جو ہمارے جو دو بھائیوں نے، مہمانوں نے سجیشن دی ہے، تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جو ہے بڑی بڑی آرگنائزیشن یا کینیڈا، امریکہ یا بہت دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اوپر نظر کرتے ہیں. میری نالج کے مطابق پاکستان کے اندر 5 ملین سے زیادہ جو ہے وہ مسلم حضرات ہیں. اگر ہم لوگ 1 روپیہ بھی دیں تو ان لوگوں کی مدد آرام سے ہو سکتی ہے، کیونکہ بڑی آرگنائزیشن اور چرچ جو ہے انہوں نے تو پروف کر ہی دیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کے بجائے ہم کیوں نہ ایک عام لوگوں تک اپروچ کریں اور ان کو بولیں کہ وہ اس چیز کی مدد کری جائے ان کی. جی سحر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ پاکستانی، تمام پاکستانی وہ مل کر ان کو پاکستانی سمجھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. کاش کسی کے دل میں اتر جائے سحر کی بات. خان صاحب بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ پاکستان سے کالر ہمارے ساتھ تھے. قیدیوں کو یاد رکھو جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. اور آخری عدالت کی تصویر آج دکھانا چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنی ٹیم جو یہاں پر ہیں اور دیگر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. آخری عدالت کی تصویر ہمارے رویے، اعمال اور ان کا اجر. سنیے غور سے. اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور جب بھی عبرانی میں یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے نا، سچ کہتا ہوں، اس سے مراد زور ہے اس پر، زور ہے اس پر. ہمارا زور کہاں پر ہے؟ جب تم میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. اگر تم نے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، کیا؟ پیاسے کو پانی، بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا، پردیسی کو گھر میں اتارا، قیدی کی تیمارداری کی، اس کو وزٹ کیا، تو یہ میرے ہی ساتھ کیا. ہم آخرت کو سنوارنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. آخرت کو سنوارنے کے لیے. لیکن یہ پریکٹیکل حصہ آخری عدالت کا ہمارے سامنے ہے. مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ شریک ہوئے. طارق صاحب، آپ آخر میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ 1 منٹ آپ کو دوں گا اور پیٹر صاحب اس کے بعد 1 منٹ آپ کو دوں گا تاکہ پھر پروگرام کا اختتام کریں. ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا. طارق صاحب آخری بات 1 منٹ میں. جی بالکل. یہ جو 2 ٹاپک تھے، اس میں جو پہلا ٹاپک تھا اس میں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ میں تربیت کا جس پر اسے جانا بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا، ہمیں تربیت کرنی چاہیے. دوسری بات جو ہے جو پیٹر صاحب نے بھی کہی اور ہم نے کہی کہ ہم مل کر ان لوگوں کی مدد کریں اور جیسا بھی ہو سکتا ہے انڈیویجولی طور پر ان کے بارے میں سوچیں اور دعا کریں. بہت شکریہ. پیٹر صاحب آخری بات. ہم کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی درخواست کرتا ہوں
کہ خدا را سامنے آئے، خواہ آپ چرچ کی صورت میں آئیں، خواہ انفرادی صورت میں آئیں. ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. وہ جو کچھ وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے یا جس طرح کرم میں ہے وہ بیان نہیں کر سکے، وہ اس سے زیادہ اور بڑی کرم میں ہے. بہت شکریہ. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں، اور جس طریقے سے بھی کوئی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کریں تاکہ ان کو اس مشکل سے، مصیبت سے رہائی دے. اور ساتھ میں تھائی لینڈ کے کرسچنز کو جو وہاں پہ پس رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ نہ چھوڑیں. جب کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آتا تو خدا خود ان کی مدد کے لیے آسمان سے آ جاتا ہے. تو آپ مایوس نہ ہوں. ہم لوگ اپنی پوری طاقت سے، اپنے دل سے آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جب تک آپ کا کوئی سلوشن پراپر نہیں نکلے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بہت شکریہ پیٹر صاحب، طارق بھائی، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. میں اپنی ٹیم کا، سب سے پہلے خداوند کا، اپنے خاندان کا، اپنی ٹیم کا، اور وہ میرے دوست جو میرے ساتھ ہر حالت میں کھڑے رہتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سے میرے مسلمان دوست ہیں، احباب ہیں، سکھوں میں سے بہت سے ہیں، ہندوؤں میں سے بہت سے ہیں. بہت پیار، بہت محبت کا رشتہ سب کے ساتھ. یہ بھلائی کا سفر ہے. ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے اور وہ اپنا حصہ ڈالے تو پھر میں ڈالوں گا. کار خیر ہے، یسوع مسیح کہیں گے، قیدی کی مدد کی، بھوکے کو کھلایا، تم نے مجھے کھلایا ہے. میں امید اور ایمان رکھتا ہوں کہ بھلائی کے سفر میں اور چراغ جلیں گے اور یہ ظلمتوں کے، زیادتیوں کے اندھیرے ختم ہوں گے، جہالتوں کے اندھیرے ختم ہوں گے. کیونکہ کچھ چراغ اور جلیں گے تو اندھیرے مٹتے جائیں گے. روشنی کے سفر میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لیے کلام خدا کی روشنی میں اس طرح کا معاشرہ دیکھیں گے جس میں محبت ہو، بھائی چارہ ہو، برداشت ہو، تحمل ہو. ایک دوسرے کو تعمیر کریں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، اور فقط زبانی اور تعلیمات کی حد تک نہیں بلکہ عملی تصویر بن جائیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کی سلامتی، اس کی برکت، اس کی محافظت آپ سب کے ساتھ رہے. اپنا بہت خیال رکھیے. محبت کے پیغام کو عام کیجیے. صلح اور سلامتی کو فروغ دیجیے تاکہ ہم اس دنیا میں خدائے محبت کی محبت انسان خدا کے ساتھ اور اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ کر سکیں، یہ دیکھ سکیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان دانیال.